all born with an intense desire to learn. Somewhere along the line, many of us lose our passion for learning, whatever the reasons. Once the basics are covered, many people tend to stick to what they know and avoid situations or challenges where they may mess up or be forced to learn something new, thus creating a safe, secure, and comfortable world for themselves. When we resist learning, unlearning, and relearning, the options available to us narrow down greatly. So, learn, unlearn, and relearn is the key to stay current and go ahead. Today, we have amidst us Professor Harpreet Kaur, Assistant Professor, Department of Computer Science and Applications, BM Khalsa College, Garshankar. We welcome you, ma'am. Today's speaker, Professor Harpreet Kaur, will focus upon the topics like Google Form Designing, automatic certificate generation, especially emphasizing on Certify M and Autocrat. As per ma'am's directions, all the participants are required to have a copy and pen with them so that they could note down the steps. Now I call upon Professor Harpreet Kaur to deliver on these topics. Professor Harpreet Kaur. Thank you, ma'am. A very good morning to Principal Sir and good morning to all the teachers. A warm welcome to everybody who is joining today us for this workshop. It is privilege to talking to you all and always exciting to be online and share insights with all of you. In this session, I am going to show you how to design an advanced level form and how to instantly generate a certificate after a person submitting the form. The certificate will then be emailed directly to all the participants. So firstly, we would like to go for to design a Google form. For this, there are two ways. Firstly, type Google form. Type the Google Forms and click on the first link of the Google Forms. Here are two sections for personal blog, for business blog. We will go for only go to Google Form. So यहाँ पर बहुत सारे forms हो गए like template. You can also use the template from here, but I will go for blank template. So suppose I want to design a form for admission form. So there are lots of things to learn about how to design a form in a interactive way. We can use the background images and designs. So suppose I am going to give the title of this form, that is admission form. यहाँ पर आप कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन देनी है, फिल दिस फॉर्म टू शो योर interest. Anything you want to type here, you can. So first question, there are numbers of options. You can add any type of questions, like firstly I am adding the first full name. By default it is short answer, so we can also give another settings like response validation. So ये वो वाली options होती है जहां पर क्या होता है,
हम यूजर का जो भी एंटर करता है उसको वैलिड करना होता है। तो इसमें जैसे मैंने बोला कि अगर यूजर क्या है वो ओनली टेक्स्ट एंटर करे, तो अगर वो इनवैलिड एंट्री करता है तो यहाँ पर उनको उसको मैसेज आ जाए कि आपने जो नेम एंटर किया है वो गलत किया है, मतलब आपने कोई अंडरस्कोर यूज कर दिया है, कोई डॉट यूज कर दिया है। तो आप बोल सकते हैं इनवैलिड नेम। आप इसको फुल नेम को कंपलसरी बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसको ऑन कर दे रिक्वायर्ड को। So this will this will become the compulsory field. After that, we can add another fields like father name, mother name, etc. So next one is if I want to add the Aadhaar card. By default it can enter, we can enter any number from here, we can enter any text form. So यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी यूजर एंटर करे वो ओनली नंबर एंटर करे, ना कि कोई टेक्स्ट एंटर करे, जहाँ कोई @ कोई करैक्टर कोई स्पेस ना एंटर करे। तो हम यहाँ पर वैलिडिटी लगाएंगे ओनली नंबर की। सो नंबर की वैलिडिटी लगाएंगे हम यहाँ पर। अगर यूजर कोशिश करता है भी वो टेक्स्ट एंटर कर दे तो हम यहाँ पर उसको मैसेज शो कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक और भी ऑप्शन होती है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम कोई भी टेक्स्ट बॉक्स होता है तो उसमें क्या होता है, हम यूजर को शो कर सकते हैं अभी आप यहाँ पर आधार का नंबर एंटर करें, जैसे एंटर यूर आधार कार्ड, आधार नंबर। So there are lots of options like you can add a different kind of question, multiple choice question, checkbox, drop down, file, upload, linear scale, multi choice, grid, checkbox, grid, date. So आप यहाँ पर किसी भी टाइप का क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आगे जो भी एंटर करूंगी तो यहाँ पर देखो आप जेंडर, जैसे आप जेंडर की ऑप्शन देते हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन दे देता है फीमेल, मेल, प्रेफर नॉट टू से अदर, जस्ट ऐड ऑल। हेयर आप यहाँ पर कोई भी सेक्शन ऐड कर सकते हैं। सेक्शन मीन्स सेक्शन क्या होता है, जो फॉर्म को डिवाइड करता है, ब्रेक करता है डिफरेंट डिवीजन में। ठीक है, आप सेक्शन 1 में ऐसे कर सकते हैं, अगर मैं फीमेल को मार्क कर रही हूँ तो उसमें क्या होता है वो फीमेल सेक्शन में चला जाए, अगर मैं मेल को मार्क कर रही हूँ तो वो मेल सेक्शन में चला जाए। तो इसके लिए हम सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। सो इसके लिए भी हम जैसे देखो आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, आप ऑर्डर को शफल कर सकते हो। सो गो टू सेक्शन, जैसे हमने यहाँ पर सेक्शन ऐड कर दिया, अगर मैं फीमेल पर क्लिक करूँ, जैसे आपने मेडिकल से रिलेटेड कोई फॉर्म बनाया है तो उसमें क्या होता है, अगर आपने फीमेल कैटेगरी में जाना तो वो उसके लिए जो सेक्शन होगा वो फीमेल कैटेगरी वाला सेक्शन होगा। तो उसमें क्या होगा, आप वहां क्लिक करें वो फीमेल कैटेगरी में चल जाएगा। अगर वो मेल पे सिलेक्ट करता है, अगर मेल की डिसीज कोई होगी उसके लिए आपने ट्रीटमेंट कराना है तो वो मेल कैटेगरी में आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डेट ऑफ बर्थ। सो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली उठा लेता है डेट डाटा टाइप को। सो हियर वी कैन एंटर द डेट ऑफ बर्थ फॉर पर्टिकुलर पर्सन। नेक्स्ट वन इज वी कैन ऐड क्वालिफिकेशन। जैसे मैंने यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऐड किया। सो क्वालिफिकेशन के लिए हम जो टाइप यूज करेंगे उसके लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज कर सकते हैं हम। दिस वन ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12th, सेकंड वन ग्रेजुएशन for this PG.
सपोज यू वांट टू अपलोड दी फाइल ऑन दिस फॉर्म, आप चाहते हो कि यूजर अपनी जो भी है कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे आपने एडमिशन फॉर्म बनाया है तो आप चाहते हो कि वो अपनी 10th क्लास की या +2 क्लास की सर्टिफिकेट को अपलोड करे। तो उसके लिए हम जो करेंगे, जैसे हमने किया मार्कशीट, अपलोड योर फोटो और मार्कशीट। For this, we will use the tag file upload. So go to continue. So here are some settings like आपने चाहते हैं कि ओनली वन स्पेसिफिक टाइप को ही वो अपलोड करे, जैसे मैंने यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, अभी वो पीडीएफ फाइल ही सिलेक्ट करे ना। तो उसके बाद नंबर ऑफ फाइल्स वो कितनी अपलोड कर सकता है, तो 1। अगर आप पीडीएफ सिलेक्ट करते हो तो उसमें क्या होता है भी आप 1 फाइल में ही सभी फाइल अटैच कर सकते हैं ना। उसके बाद आप कितना साइज, उसको परमिशन कितनी देते हो, वो कितने कितने फाइल का साइज जो अपलोड कर सकता है। सपोज मैंने दे दिया 10 MB। देन आप इसके बाद यहाँ पर यूट्यूब लिंक भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई भी। इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सिलेक्ट करूंगी ऐड वीडियो। जैसे मैंने बीएम खालसा कॉलेज की कोई वीडियो ऐड करनी है, बीएम खालसा कॉलेज। Give me a moment, please. It is not showing the any video. ओके आफ्टरवर्ड मैं आपको बताती हूँ कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें। सो नेक्स्ट वन इज एड्रेस। जैसे मैंने कोई कोर्स ऐड करना है तो इसके लिए हम चेक बॉक्स यूज कर सकते हैं, दैट इज लाइक एक्सेल। आप कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, पीपीटी, वर्ड। After that, you can add the address here. For address, it's we can add the long paragraph. That is good because एक लाइन में कई बार एड्रेस जो हम टाइप नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लॉन्ग आंसर, जो लॉन्ग आंसर टेक्स्ट होता है उसको हम प्रेफर करते हैं। सो ऐसे हम बहुत सारी ऑप्शंस जो इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ दोबारा वो वीडियो का लिंक अपलोड करने की, अगर होता है तो। मे बी कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो, वो वीडियो सर्च नहीं करा है। आई एम सॉरी, ये ऐड नहीं करा तो कोई बात नहीं। सो इसके बाद देखो हमने ये फॉर्म डिजाइन कर लिया। अब इसके बाद मैं इसमें थीम अटैच करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करें। ये कस्टमाइज थीम का आइकन बना हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। देन यू कैन चूज फॉर हेडर। हेडर मीन्स दिस वन, ठीक है। हेडर फोर आप कोई भी ऊपर से कोई भी इमेज जो अटैच कर सकते हो। लाइक मैंने किया वर्क एंड स्कूल में, मैंने ये फोटो क्लिक कर दी। सो इंसर्ट दी पिक्चर ऑन द हेडर, यहाँ पर ये पिक्चर ऐड हो जाएगी। देन आफ्टर दैट वी कैन चूज द कलर ऑफ द थीम। लाइक मैंने ये वाला कलर दे दिया, थीम कलर। आप इसका बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला बैकग्राउंड कलर दे दिया।
उसके बाद मैं इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकती हूँ, जैसे मैंने ये वाला फॉन्ट यूज कर लिया एडमिशन फॉर्म के लिए। थीम के लिए मैं और भी कोई कलर है यहाँ पर मोर कलर पे जाके सिलेक्ट कर सकती हूँ। So this is a theme color. So background color is a pink and theme color is a red. So ऐसे हम कोई भी फॉर्म मतलब हम अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। So next point is using how to generate automatic certificate using different kinds of software. So there are different methods to generate certificates, like using AutoCAD, Certify.am, using LibreOffice, using Mail Merge in Microsoft Office. एक्चुअली ये आइडिया क्या है, आप यूज कर रहे हो AutoCAD सर्टिफिकेट और अदर भी कोई आप Certify.am यूज कर रहे हो, तो इसमें जो फंडा यूज हो रहा है, फंडामेंटल जो बेसिक यूज हो रहा है, तो वो मेल मर्ज का कंसेप्ट ही यूज हो रहा है। तो आप मुझे कोई भी टीचर बता सकता है अभी मेल मर्ज क्या होता है? आप में से कोई भी टीचर मुझे बता सकता है प्लीज, मेल मर्ज क्या होता है? हैव यू एनी आइडिया अबाउट द मेल मर्ज? I'm audible? Yes, ma'am, you are audible. यस मैम। मैम प्लीज आप कोई बता सकते हो भी मेल मर्ज क्या होता है? आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज किया होगा मेल मर्ज। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। सो मेल मर्ज क्या होता है, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी टेम्पलेट बनाया, तो आपने तो एक सर्टिफिकेट ही बनाया है ना, तो उसको क्या करना चाहते हैं आप, चाहे 1000 पर्सन हो चाहे 1500 पर्सन हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, एक बार में आप अपने सभी को सर्टिफिकेट सेंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक टेम्पलेट से बहुत सारी कॉपीज जनरेट कर लेंगे, जो कॉपीज होगी वो सभी को सेंड होगी। सो दैट इज द मेन फंडा ऑफ मेल मर्ज, ठीक है, आप उसकी कॉपी जनरेट कर लेते हो। सो इसके बाद हम करेंगे, हम टुडे वी विल लर्न यूजिंग AutoCAD एंड Certify.am टू गेट स्टार्टेड। सो इसके लिए सबसे पहले, जैसे मैंने ये तो फॉर्म डिजाइन कर लिया है, अगर मैं नया फॉर्म डिजाइन करूंगी इसमें जाके, तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर गूगल की बहुत सारी सर्विसेज होती है, जैसे यूट्यूब, प्ले, न्यूज, जीमेल, मीट। तो मैं इसके लिए सबसे पहले मैं गूगल ड्राइव पर जाऊंगी। तो पहले सबसे पहले मैं AutoCAD के लिए करूंगी। सो AutoCAD भी एक सॉफ्टवेयर है जो मेल मर्जी के लिए यूज होता है। तो आप ऑटो जनरेट सर्टिफिकेट जो हमारे जो ऑटोमेटिक जब भी यूजर सबमिट करता है तो उनको चले जाते हैं। But there are some limitation using AutoCAD and Certify.am. We can send only 1500 certificate per day on educational email, and it is only for 100 certificate for normal user. आप जो होता है क्या 100 certificate per day ही भेज सकते हैं using AutoCAD and Certify.am, ठीक है जी। अगर आपकी एजुकेशनल आपकी ईमेल है, जैसे आप गूगल में जो भी जी सूट पर बनाते हो, तो एजुकेशनल ईमेल पर आप 1500 सर्टिफिकेट जो इंसर्ट जो भी सेंड कर सकते हैं। बट जो हमारा लिब्रे ऑफिस है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जहां पर हम मेल मर्ज करते हैं, तो नंबर जो भी हम आप चाहे 9000 चाहे 10,000 5000 सर्टिफिकेट सेंड करना चाहते हैं तो उसमें आप कर सकते हो। पर आज हम AutoCAD के थ्रू करेंगे। तो मैं गूगल ड्राइव में एंटर होगी, यहाँ पर मैं क्या करूंगी, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, आप क्रिएट अ न्यू फोल्डर। प्लीज नोट डाउन दिस स्टेप, क्रिएट अ न्यू फोल्डर। क्रिएट ए न्यू फोल्डर। इस फोल्डर का नाम मैं रखना चाहूंगी, जैसे मैंने असाइनमेंट के लिए बनाना है, ठीक है, सर्टिफिकेट बच्चों के लिए असाइनमेंट।
यहाँ पर मैंने असाइनमेंट फोल्डर बना दिया। उसके बाद अब मैं क्या करना चाहूंगी, मैं फॉर्म डिजाइन करूंगी सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने ब्लैंक फॉर्म डिजाइन करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा असाइनमेंट, यहाँ पर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। तो मैंने लिखा यहाँ पर फुल नेम, कोई भी आप जो भी स्टूडेंट ने टॉपिक नेम जो भी उन्हें उसने चूज करना है, तो वो वहां पर ये टॉपिक सिलेक्ट कर सकता है और जहाँ खुद से टाइप कर सकता है। सो मैंने ये सिंपल फॉर्म डिजाइन कर दिया है ना। तो इसके कुछ सेटिंग है, मैं भूल गई उसमें बताना। तो इसमें क्या सेटिंग है, सबसे पहले देखो आप, एक तो होती है जनरल सेटिंग, दूसरी होती है प्रेजेंटेशन वाली, तीसरी होती है क्विजेज। अगर इस फॉर्म को आप क्विज़िस फॉर्म में बनाना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपका नॉर्मल फॉर्म है तो आप जस्ट जनरल कैटेगरी में जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने क्या करना है, यहाँ पर कलेक्ट ईमेल पर क्लिक करना है। तो इसमें क्या होगा, जो भी यूजर फॉर्म सबमिट करेगा तो उसकी ईमेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर फॉर्म में अटैच हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी हमारी एक्सेल फाइल में। सेकेंड वन इज लिमिट टू वन रिस्पॉन्स। अगर आप चाहते हो भी यूजर क्या करे, ओनली एक ही सबमिशन कर सकता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं लिमिट टू वन रिस्पॉन्स। आफ्टर सबमिटिंग वो दूसरी सबमिशन के लिए वापस फॉर्म पर नहीं जा सकता। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंटेशन। आप चाहते हो भी आपके फॉर्म के नीचे प्रोग्रेस बार शो हो, वहां पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी। अनदर रिस्पॉन्स अगर वो देना चाहता है तो वो उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, पर हम इसे अनचेक्ड करेंगे। सो हम यहाँ पर सेव कर देंगे इसकी सेटिंग। इसके बाद देयर टू सेक्शन, वन इज फॉर्म, one is for only question section and second one is responses। जो भी यूजर सबमिट करेगा फॉर्म, तो उसके जो रिस्पॉन्स जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक एक्सेल फाइल होगी गूगल वालों की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ग्रीन वाला आइकन है यहाँ पर क्रिएट स्प्रेडशीट, तो इसका नाम मैं क्या रखूंगी, असाइनमेंट। तो क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। सो यहाँ पर हमारी एक एक्सेल शीट बन गई है। सो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, हमारा जो फॉर्म है उसकी जो इनपुट कर रहा है यूजर, वहां पर स्टोर हो रही है इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आप फॉर्म का नाम भी असाइनमेंट रख ले। सो मैं वहां पर ट्रायल लूंगी। यहाँ पर ये एक आइकन होता है फॉर प्रीव्यू, आप चेक करना चाहते हैं भी आपकी जो इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहे हो तो वो इंफॉर्मेशन जा रही है उसमें। सो मैं चेक करने लगी हूँ। जैसे मेरी ये आईडी है वर्कशॉप gmail.com। टॉपिक नेम इज सी, सबमिट। नाउ आप यहाँ पर देख सकते हो तो हमारी एक एंट्री हो चुकी है। उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है भी, सर्टिफिकेट के ऊपर हमारे यहाँ पर रेफरेंस नंबर हो, उसके बाद जो भी फुल नेम, टॉपिक नेम, वट एवर यू वांट टू ऐड। ठीक है। तो अगर मैं चाहती हूँ भी ऑटोकैड में हमारा रेफरेंस नंबर ऑटो जनरेट हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो फर्स्ट कॉलम होगा वहां पर क्लिक करेंगे ऊपर, यहाँ उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, देन इंसर्ट वन कॉलम टू द लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर मैं कोई भी कॉलम ऐड करूंगी, जैसे सर्टिफाइड नंबर, जो भी सर्ट नंबर, यहाँ पर मैंने सर्ट नंबर ऐड कर दिया।
तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। वो फार्मूला मैं आपको शेयर कर दूंगी। बेसिकली वो एरे फार्मूला होता है, उसमें क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली जो उसका नंबर हो वो इंक्रीज कर देता है। तो उसके लिए जो मैं फार्मूला लगाऊंगी, मैं आपको शो भी कर देती हूँ। जैसे मैंने उसका साइज इंक्रीज कर रही हूँ, 18। सो दिस वन एरे फार्मूला। सो यहाँ पर जो आप डबल कोट्स में दे रहे हो, तो यहाँ पर आप अपने जो भी नाम, जैसे वो अरविंदर सर का रेफरेंस नंबर था, लैंग्स डॉट, जो भी आप नंबर दे रहे थे, जैसे हमारा फर्स्ट इवेंट है तो 01 होगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो नंबर, जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया, नंबर आ जाएगा 100 से, स्टार्ट किया है तो 100 से आ जाएगा। तो आप यहाँ पर ओनली आपको फार्मूला पता होना चाहिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है इतनी। आपने बस यहाँ पर एडिटिंग करनी है जो भी आप रेफरेंस नंबर देना चाहते हो। सो मैं बेसिकली ये वाला फार्मूला यूज कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है। तो आप नेक्स्ट अगर कोई और भी सबमिशन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो क्या है, वो हम आपका रेफरेंस नंबर, जैसे मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार। तो ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ किया हरप्रीत, कोई भी ईमेल एंटर कर दिया, कुछ भी नाम दे दिया हमने, टॉपिक दे दिया, सबमिट। सर आप यहाँ पर देख सकते हैं 101 के बाद 102 आ गया है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली रेफरेंस नंबर जो जनरेट हो जाता है। सो नेक्स्ट वन हमारा जो मेन मोटिव है, जब हम ऑटो ग्रेड करेंगे ना, तो उसमें हमें सर्टिफिकेट का टेम्पलेट भी चाहिए। आप खुद का कस्टमाइज टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं, पर आप मैं खुद यहाँ पर मैं क्या करूंगी, जो ऑटोमेटिक डिजाइनिंग होती है, गूगल स्लाइड में जाके सर्टिफिकेट बना सकते हैं। आपको एक चीज और बताती हूँ, यहाँ पर जैसे मैं गूगल ड्राइव पर गई, न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद मैंने क्या करना है, गूगल स्लाइड पर जाना है। तो फ्रॉम ए टेम्पलेट, मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन नहीं बनाना चाहती, मैं फ्रॉम ए टेम्पलेट यूज करूंगी। तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे मैंने कोई भी टेम्पलेट यूज करना है, जैसे मैंने स्टूडेंट नेम वाला टेम्पलेट यूज कर लिया। तो ये वाला सर्टिफिकेट मैं यूज कर सकती हूँ अपने लिए। जैसे मैंने असाइनमेंट के लिए बनाना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मान लो ये कंप्यूटर साइंस की असाइनमेंट है, कंप्यूटर साइंस असाइनमेंट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो मेन मोटिव है ऑटोकैड का इंस्टॉल करना, ठीक है। सो हम यहाँ पर एड वन, नेक्स्ट स्टेप इज एड वंस पर जाएंगे। यहाँ पर गेट एडवांस, ठीक है, एडवांस जो भी है, एडवांस जो भी है, हम यहाँ पर गेट एडवांस पर क्लिक करेंगे। सो यू कैन टाइप हेयर ऑटोक्रैट। तो ऑटोक्रैट पहले ही आ गया, हम यहाँ इस पे सिलेक्ट करेंगे, ये येलो कलर का टैग होगा, इसमें आप क्लिक करेंगे ऑटोक्रैट पर, क्लिक ऑन द इंस्टॉल, गो टू द कंटिन्यू बटन। यहाँ पर आप वो ऑथेंटिकेशन के लिए पूछ रहा है कि भी आप कौन सी आईडी में से इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो मैंने ये बाय डिफॉल्ट साइन इन किया है, जस्ट अलाउ इट।
सो ऑटोक्रैड हमारे जो गूगल, आपका जो अकाउंट है गूगल ड्राइव में, वहां पर ऑटोक्रैड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। तो इसके बाद हमारा जो काम है, हम क्या करना चाहते हैं, तो हमारा मेन मोटिव ये है कि हमारा जो सर्टिफिकेट है ऑटो जनरेट हो जाए। दोबारा एडवांस में जाऊंगी, यहाँ पर ऑटोक्रैड पर क्लिक करूंगी, देन ओपन दी ऑटोक्रैड। It's taking time little bit. So click on the new job. आप प्लीज ये वाले जो स्टेप्स है वो नोट कर ले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने भी बहुत बार इसकी प्रैक्टिस की है। इसकी आप जब तक आप 4-5 बार प्रैक्टिस नहीं कर लेते, आपको नहीं आएगा। सो आपने जॉब नेम देना है यहाँ पर। जैसे मैंने असाइनमेंट के लिए सर्टिफिकेट बनाना है, असाइनमेंट अंडरस्कोर जो भी आप नाम है, सर्टिफिकेट। गो टू द नेक्स्ट। अब इसके बाद आपने जो सर्टिफिकेट डिजाइन किया है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आप खुद से क्रिएट करना चाहते हैं, ऑटोक्रैड भी ऑप्शन देता है आपको टेम्पलेट की, यहाँ क्रिएट एग्जाम्पल पर आप क्लिक कर सकते हो। पर मैंने खुद पहले डिजाइन किया है गूगल स्लाइड पर, वो वहां पर मैं सर्टिफिकेट जो इस पर कनेक्ट करूंगी। सो कनेक्ट करने से पहले थोड़ी सी जो ऑप्शंस हैं हमें जो ऐड करनी पड़ेगी इस पर सर्टिफिकेट पर। सबसे पहले हम सर्टिफिकेट पर जाते हैं। यहाँ पर जो भी हमारा नेम देंगे ना, वो इसके लिए हम टैग यूज करेंगे। तो ऑटोक्रैड में हम एंगुलर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। दीज आर कॉल्ड एंगुलर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर जो भी आप नाम देंगे वो एक्सेल शीट के साथ वो मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका नेम क्या, देखो आपने, जैसे मैंने ये सर्टिफिकेट बनाया, उसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये अपलोड कर दिया, जो देखो आप स्टूडेंट सर्टिफिकेट आ गया यहाँ पर। तो ये अपलोड हो चुका, आप इसको फर्स्टली क्रॉस कर दो। तो मैं सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन मैं सर्टिफिकेट पर ऊपर शो करना चाहती हूँ। बेसिकली जो ऑटोक्रैड होता है वो एक्सेल सीट के साथ एम्बेड होता है ना, जो भी सर्टिफिकेट बनेगा इस शीट से बनेगा। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या नेम है, यहाँ पर फुल नेम है ना, तो फुल नेम वहां पर मैं ऑप्शन दूंगी। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया फुल नेम। थोड़ा साइज इसका डिक्रीज कर लेते हैं। सो फुल नेम दे दिए यहाँ पर। उसके बाद मैंने जो असाइनमेंट दी है, वो असाइनमेंट जो आई है वहां पर वो किस टॉपिक पर है, हमने एक्सेल शीट में ऐड किया है ना टॉपिक। ये टॉपिक मैं कॉपी पेस्ट भी यहाँ पर कर सकती हूँ। जैसे मैंने राइट क्लिक कर सकती हूँ और या शॉर्टकट की लगा सकते हो कंट्रोल-C। तो मैंने ये कॉपी कर लिया ऑन टॉपिक। तो इसको भी हमें एंग्लो ब्रैकेट में देना पड़ेगा। जैसे मैंने ये कॉपी कर लिया, थोड़ा शॉर्ट में आ रहा है, तो थोड़ा साइज इसका इंक्रीज कर देते हैं, सिलेक्ट करके इसको। सो मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है। थोड़ा सा, एक मिनट, मैं खुद से लिख लेती हूँ, समटाइम्स ये प्रॉब्लम कर देता है। आप वापस जहां पर जाना चाहते हो तो उसके लिए कंट्रोल-Z की प्रेस कर सकते हो। जैसे मैंने टॉपिक यहाँ पर लिख दिया। आपको देखना चाहिए, अगर वहां पर आपने स्मॉल टी लगा दिया तो यहाँ पर वो उसके साथ मर्जिंग नहीं करेगा। तो इस बात का खुद ध्यान रखना पड़ेगा हमें। सो नेक्स्ट वन इज, आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैं एक एंट्री करूंगी, तो वो उसका नाम क्या रखेंगे जो इस पर होगा, दैट इज अ सर्ट नंबर। सर्ट नंबर मैंने यूज किया ना, तो मैं यहाँ पर भी सर्ट नंबर ही यूज करूंगी। तो वो भी इसको हम
एंगुलर ब्रैकेट में ही देंगे। सर्ट नंबर। सो मैंने यहाँ पर इसको भी टाइप कर दिया। सो इसके बाद हम देखेंगे भी ये सर्टिफिकेट, समटाइम्स क्या होता है हमारे टैग मैच नहीं होते, तो कई बार ये हो जाता है, कई बार नहीं भी होता, टेक्निकल इश्यू आ भी जाते हैं ना, तो हमें वो कोई ना कोई मिस्टेक होती है वो निकालनी पड़ती है। सो मैंने ये सर्टिफिकेट डिजाइन कर लिया है, और जो जो मैं चाहती हूँ सर्टिफिकेट के ऊपर आए तो मैंने वो वाले टैग यूज कर लिए। तो दोबारा हम यहाँ पर जाएंगे, क्लिक ऑन दी एड ऑन्स, देन क्लिक ऑन दी ऑटोकैड, ओपन, बिकॉज हमने इंस्टॉल कर लिया है ऑटोकैड। हम न्यू जॉब बनाएंगे दोबारा से। असाइनमेंट सर्टिफिकेट। सो टेम्पलेट मैंने पहले ही जो हमने अपलोड किया था मैं उसको यूज करूंगी। तो फैचिंग टैग्स फ्रॉम टेम्पलेट, तो जो टैग्स होते हैं वो उसको फैच कर रहा है। तो हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज आपको मैपिंग करनी होगी। मैपिंग का मतलब होता है जैसे हमने फॉर्म पे क्या यूज किया था, फुल नेम, ठीक है ना, तो फुल नेम यूज किया तो उसको जो हमारा कॉलम है यहाँ पर उसके साथ जो जो आपका सर्टिफिकेट है उसको मैप करे, जो मैच करे उसके साथ। उसके लिए यहाँ पर देखो बहुत सारी ऑप्शन है, सर्ट नंबर, टाइम स्टैम्प, ईमेल एड्रेस, फुल नेम। तो यहाँ पर हम फुल नेम की जगह पर क्या चाहते हैं, फुल नेम ही चाहते हैं ना, तो क्लिक ऑन दी फुल नेम। देन टॉपिक के बाद क्या आता है, टॉपिक, सर्टिफिकेट, सर्ट नंबर का क्या ऑप्शन है, यहाँ पर हमने टैग क्या यूज किया है वहां पर, सर्ट नंबर। सो क्लिक ऑन दी नेक्स्ट। हाँ जी, यहाँ पर फाइल नेम का क्या मतलब है, जो यूजर सर्टिफिकेट जा रहे हैं खुद बन के, तो हमारे जो फोल्डर बना के रखा था ना हमने असाइनमेंट का, वहां पर जितने भी सर्टिफिकेट हम जनरेट हो गए ऑटोमेटिकली वहां पर स्टोर हो गए। तो अब हम चाहते हैं हर एक पर्सन का जो सर्टिफिकेट है उसका नाम, जो फाइल नेम आए वहां पर क्या आए, मैं उस पर्सन का नाम से सेव करना चाहती हूँ, कोई मैं टॉपिक से सेव करना चाहती हूँ, उसके कॉलेज नेम से सेव करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ये ब्लू, नेवी ब्लू जो भी कलर होता है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पर टुडे, नाउ, आप आज की डेट आ जाए, अभी का टाइम आ जाए, जो भी उसने जब भी फॉर्म वो सबमिट करेगा, टाइम स्टैम्प आ जाए, जो भी कॉलम है आपने ऐड किए। तो मैं चाहती हूँ उस पर्सन का फुल नेम आ जाए, जो फाइल नेम रखेंगे, मैं आपको शो करूंगी बाद में। तो यहाँ पर मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। फर्स्टली मैं क्या करूंगी, वहां पर सिलेक्ट करूंगी, देन वहां पर मैं क्या करूंगी, पेस्ट। आप कंट्रोल प्लस वी भी टाइप कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो उसके बाद फुल नेम के बाद मैंने जैसे उसके बाद और क्या नाम आए, जैसे लिख दिया मैंने सर्टिफिकेट, किसका सर्टिफिकेट है ये, उस पर्सन का नाम आ जाएगा सर्टिफिकेट। और उसके बाद आप जो सर्टिफिकेट भेज रहे हो वो पीपीटी फॉर्म में आए कि गूगल स्लाइड फॉर्म में आए, तो मैं चाहूंगी पीडीएफ, बिकॉज पीडीएफ क्या होता है उसको चेंज नहीं कर सकता कोई अपने अकॉर्डिंग। सो मैंने पीडीएफ पर क्लिक किया। नेक्स्ट वन इज आउटपुट एज, आप सिंगल टाइम में सभी को भेजना चाहते हो, जैसे अब बाद में सिलेक्ट हो जाए आउटपुट क्या सिंगल में चले जाए, मल्टीपल मतलब अलग अलग मेल जाए ना सभी को, तो हम मल्टीपल क्लिक करेंगे। देन गो टू नेक्स्ट। अभी जो मैंने फर्स्ट स्टेप में आपको फोल्डर बनवाया था वहां पर सारे फोल्डर में जो भी उसका फोल्डर होगा उसमें सारे सर्टिफिकेट्स जो स्टोर होंगे, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी चूज फोल्डर पर। प्लीज आप ये स्टेप्स, वैसे तो मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर देंगे हम, बट आप प्लीज जो भी है स्टेप नोट कर ले आप, इसके बाद अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो क्लिक ऑन दी फोल्डर। यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर है, मैं यहाँ पर असाइनमेंट पर क्लिक करूंगी जो मैंने पहले बनाया था, सिलेक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका जो डेस्टिनेशन फोल्डर वो वहां पर शो हो रहा है। देन गो टू द नेक्स्ट। ये रेफरेंस के लिए होता है, इसमें क्या होता है भी अगर आप अलग अलग पर्सन का अलग अलग फोल्डर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन होती है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन को भी आप स्किप कर दो। नेक्स्ट वन इज आप
डॉक्यूमेंट जो टेम्पलेट यूज कर रहे हो वो शेयर करना चाहते हो, यस हम करना चाहते हैं। उसके बाद क्या है, हम जो आप डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म में शेयर करना चाहते हैं वो पहले ही हमने सिलेक्ट कर लिया था। देन उसके बाद किया हम रीशेयर नहीं करेंगे, एक बार शेयर हो गया, ठीक है। देन सेंड फ्रॉम जेनिक नो रिप्लाई एड्रेस, मैं यस कर दूंगी तो वो क्या होता है, वो हमें रिप्लाई नहीं कर सकता। जैसे हमें यूट्यूब वाले मेल नहीं भेजते, फेसबुक वाले, तो वहां पर क्या होता है सम टाइम हम उनको उनकी मेल तो आ जाती है पर वो हम उनको रिप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट भी, आप ईमेल कैसे शो करना चाहते हैं। जैसे आपकी ईमेल जा रही है तो वहां पर कैसे शो होगा ना, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर भी टैग यूज करूंगी टू। तो देखो मैंने ऑटो जनरेट किया था ना ईमेल को, जैसे मैं वहां पर सेटिंग की थी। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ईमेल एड्रेस, ठीक है, यहां पर मैं यूज करूंगी ईमेल। वहां पर देखो कैपिटल ई है, ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस टैग यूज कर लिया मैंने यहाँ पर। अब इसके बाद ये सीसी वगैरह आपकी इच्छा है, जो आप ईमेल एड्रेस वहां पर भी आपको टैग यूज करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट सब्जेक्ट क्या एंटर कर रही हूँ, सर्टिफिकेट ऑन। ऑन मीन्स किस टॉपिक पर, जो भी उस पर्सन ने फॉर्म में टॉपिक एंटर किया। जैसे मैंने कोई बच्चों को असाइनमेंट दिया सी पर, जावा पर, एचटीएमएल पर, किस टॉपिक पर उसने वो असाइनमेंट मुझे भेजी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो टैग जो हमने एक्सेल फाइल में दिया है, तो वो कौन सा टैग है, टॉपिक। उसके बाद यहां पर हम लिख सकते हैं जैसे डियर, देन टैग यूज करेंगे। वहां पर टैग क्या यूज किया था हमने, फुल नेम, ठीक है ना, फुल नेम। सो एन कैपिटल एफ कैपिटल, आपको ये ध्यान रखना होगा, NAME। डियर फुल नेम, फुल नेम जो पर्सन का नाम होगा यहाँ पर वो इम्बेड हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, कोमा। देन यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, कंग्रेचुलेशन, वट एवर यू वांट टू राइट। सो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ओके, रन ऑन फ्रॉम ट्रिगर, रन ऑन टाइम ट्रिगर। रन ऑन फ्रॉम ट्रिगर मतलब क्या है, अब आप जो भी आपने सेटिंग की है वो आप चलाना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, तो यस पर क्लिक कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला, यू मस्ट एनेबल ट्रिगर्स फॉर दिस प्रोजेक्ट बिफोर यू कैन ऐड वन टू दिस जॉब कंफर्म। आपको ट्रिगिंग करने, ट्रिगिंग का मतलब क्या होता है, अभी आपको जॉब फायर करनी है, मतलब आप स्टार्ट करनी है ये वाली जॉब, यस कर दो आप यहाँ पर। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन भी थी टाइम, इसको नो करना, क्यों, आप इसमें क्या होता है भी सबमिशन के बाद आप मैन्युअली उसको टाइम साइन करेंगे भी इतने टाइम बाद उसको मिल जाए, पर मैं चाहती हूँ जब वो सबमिट करे तो उसको साथ ही साथ ईमेल जो चले जाए। तो हमारा ये सारा काम हो गया, इसको सेव करेंगे। सो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं रन जॉब पर। तो ये जो ऑप्शन है ये एडिट के लिए, अगर मान लो आपने कुछ चेंज करना है तो यहाँ पर आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, एडवांस से ओपन करके आप अपनी जॉब जो ऐड कर सकते हैं। आप रिव्यू लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करना चाहते हैं, अगर जॉब को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। सो मैं इसको बंद करूंगी। अब मैं चेक करूंगी भी मेरा सर्टिफिकेट वो बन गया है, जाता है मुझे। तो फर्स्ट वेल मैं रिव्यू करूंगी यहाँ पर, जैसे मेरी आईडी है वर्कशॉप, सबमिट। सबमिट करने के बाद जीमेल में ऑटोमेटिकली जो भी सर्टिफिकेट होगा वो जनरेट हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ,
समटाइम्स ये टाइम ले लेता है। वर्कशॉप मैंने, आई थिंक मैंने ईमेल गलत दे दिया। आ गया। सो यहाँ पर देखिए आप खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो हमने लिखा था डियर फुल नेम, देखो आप, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो मैंने क्या लिखा था, डियर फुल नेम। तो डियर हरप्रीत, यहाँ पर जो मैंने नाम एंटर किया था वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, उसके बाद जो मेरा सर्टिफिकेट था, यहाँ पर रेफरेंस नंबर मेरा क्या आ गया, 101। नेम मेरा क्या आ गया है, हरप्रीत। देन वहां पर जो मैं टॉपिक क्या दिया था, मैंने सी दिया था। तो ये मेरा ऑटोमेटिकली जितने भी फॉर्म मैं सबमिट करूंगी उतने मेरे सर्टिफिकेट व सीरियल नंबर जनरेट करता जाएगा। फर्स्टली 101 पर अगर आगे जाके कामनी ने फिल किया तो वो उसका 102 जनरेट हो जाएगा। अगर जानकी मैम ने किया तो 103 हो जाएगा। तो ऐसे हम ऑटो करेक्ट में भी सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास ओनली 15 मिनट्स है, तो जानकी मैम नेक्स्ट परस्यू कर सकती है, उसमें थोड़ा 10 मिनट और लग जाएंगे। Fine, you can. मैम आपको समझ आ रहा है ना सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm understanding well. ओके, थैंक यू। सो नेक्स्ट मैं सर्टिफाइम पर, तो इसमें क्या है, हम कंडीशन यूज करना चाहते थे, ये तो नॉर्मल मैंने असाइनमेंट जो भी है हमने किया। अब नेक्स्ट टॉपिक इज दैट हमने कोई क्विज कराया ना, तो उसमें क्या होता है, अभी हम सभी को सर्टिफिकेट नहीं भेजना चाहते ना, तो मैं उन बंदों को, जो उन पर्सन को मैं सर्टिफिकेट भेजना चाहूंगी जो जिनके मार्क्स क्या है, 60% है, 80% है, साथ में रेफरेंस नंबर भी आ जाए, तो सर्टिफाइम जी ऑप्शन देता है। ठीक है जी। पर उसमें प्रॉब्लम क्या है, जब आप सर्टिफिकेट सेंड करते तो वो अपनी कंपनी का टैग, सॉफ्टवेयर का टैग भी अटैच कर देता है। ठीक है ना। अगर आप फ्री में यूज कर रहे हो ना, अगर आपने उनका सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ तो कोई ऑप्शन, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और अगर आप ऑफिशियल ईमेल से भी करते हो तो उसमें टैग नहीं अटैच करता, तो प्रेफर ये दो आप ऑफिशियल ईमेल में से काम करें। हाँ जी। तो मैं आपको अभी क्यूज फॉर्म डिजाइन करना भी सिखाऊंगी, भी कैसे क्यूज फॉर्म डिजाइन करते हैं हम। So firstly, go to new Google form, blank form. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं टाइटल नोट कर रही हूँ, क्विज। आप यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। उसके बाद देखो, मैं अब ये वाला फॉर्म जो बनाऊंगी ना, तो ये सेक्शन वाइज डिवाइड करके बनाऊंगी, आप ध्यान से देखना प्लीज। ठीक है। सो यहाँ पर मैंने फुल नेम अटैच कर दिया। ठीक है जी। इसको रिक्वायर्ड फील्ड बना दिया। देन उसके बाद जो भी पर्सन सबमिट कर रहा है वो किस कॉलेज का है, मैंने कॉलेज नेम दे दूंगी यहाँ पर। नेक्स्ट वन, मैंने दो इंफॉर्मेशन ही रखनी है, आप इसके अलावा भी जो भी आप चाहते हो भी यूजर क्या इनपुट करे तो वो रख सकते हो आप। ठीक है। अब इसके बाद कैसे सेक्शन में डिवाइड करते हो ना, ठीक है, आपको दिखाऊंगी कैसे सेक्शन में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर सेक्शन बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, ऐड सेक्शन। यस। यहाँ पर क्या है, आप पहले सेक्शन में जो आप जनरल इंफॉर्मेशन रख रहे हो, तो जब भी आप सर्टिफिकेट बनाएंगे ना तो इसके ऑप्शन के बेस पर बनाएंगे। तो आप जैसे कहते हैं ना, वेबिनार हो गया है तो उसके बाद सर्टिफिकेट जाए, या आप फीडबैक फॉर्म भराते हो, या फिर क्यूज में क्या होता है, आप एक बार में ही करवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवाने की भी जरूरत नहीं होती उसमें। तो आपने जो भी यूजर आपने लिंक शेयर कर दिया, तो यूजर जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट करेगा उसके अकॉर्डिंग जो भी वो क्यूज सबमिट करेगा तो उसका वो सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन 1 जनरेट हो गया, दिस इज अ सेक्शन 2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, कुछ भी टॉपिक आप लिख सकते हैं, क्विज ऑन कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। फर्स्टली मैं क्वेश्चन ऐड कर रही हूं,
जैसे मैंने लिख दिया who developed the C language। अब मैं चाहती हूँ जो ये वाला सेक्शन है ना वो क्विज फॉर्म बन जाए, तो उसके लिए मैंने कहां पर जाना है, सेटिंग बटन पर। कहां पर जाना है, सेटिंग बटन पर। यहां पर मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कलेक्ट ईमेल पर क्लिक करना है। ईमेल क्यों क्लिक करनी है, बिकॉज आपको बाद में एंटर ना करनी पड़े उस पर्सन की ईमेल। तो आप क्विजेस पे क्लिक करोगे, आप चाहते हो ये क्विज बन जाए, तो यहाँ पर मेक दिस ए क्विज पर क्लिक करना है। तो आप जो भी ग्रेड देना चाहते हो वो पर्सन को इमीडिएटली जब उसने सबमिशन किया है तभी उसको शो हो जाए, या लेटर मैं जैसे मैंने असाइनमेंट भेजी है तो मैं खुद चेक करूंगी ना, तो उसके बाद मैनुअली रिव्यू होगा ना। तो इसमें करेक्ट आंसर शो करना चाहते हो, उसके पॉइंट शो करना चाहते हो, कितने उसको मार्क्स, कितने उसने क्वेश्चन मिस किया है, वो भी सारे आप सिलेक्ट कर लोगे। तो उसके बाद सेव कर दोगे। तो मैंने यहाँ पर सेव कर, देखो आप रिक्वायर्ड फील्ड बन गया ना, ये एस्ट्रिक बटन, ये एस्ट्रिक जो होता है ना साइन, तो ये क्या होता है, रिक्वायर्ड फील्ड के लिए यूज होता है, जैसे आप कोई भी फॉर्म भरते हो। ठीक है, तो मैंने देखो ये वाला बना दिया। सो यहाँ पर ऑप्शन दे दी मैंने, जैसे डेनिस रिची। सेकेंड वन इज कोई भी नाम दे दिया, हैरी पॉटर, कोई भी नाम दे दिया। तो मैंने ऑप्शन दे दी। अब मैं चाहती हूँ जो भी पर्सन सिलेक्ट करे, जहां पर जो वो मतलब जो करेक्ट आंसर है उस पर क्लिक किया तो उसको नंबर मिल जाएगी। अगर उसने नहीं सिलेक्ट किया तो इट मींस रॉन्ग आंसर, देन क्लिक ऑन द आंसर की, ये तब ही ऑप्शन आएगी अगर आप इस फॉर्म को क्विज़ फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आंसर की, तो मेरा कौन सा करेक्ट आंसर है, डेनिस रिची। यहां पर हम ग्रेड दे सकते इतने, जैसे मैंने इस क्वेश्चन के 2 नंबर दे दिए। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर देन ग्रेड दिस। ठीक है, डन। उसके बाद एक मैं क्योंकि क्विज फॉर्म बना रही हूँ तो नंबर तो मुझे 2 क्वेश्चन तो ऐड करने पड़ेंगे ना। सो सेकंड क्वेश्चन HTML, जैसे मैंने इसकी फुल फॉर्म पूछ ली तो मैं इसके लिए मल्टीपल चॉइस दूंगी। ठीक है, सो जैसे मैंने लिखा HTML फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट, आप कुछ भी लिख लेना, मैं थोड़ा बहुत लिखूंगी हेलो टेक्स्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसका फिर दोबारा आंसर की, तो मैं इस पर राइट, देन इसको भी 2 मार्क्स दे दिए। तो ये वाला हमारा फॉर्म डिजाइन हो गया है। ठीक है, जब आप सर्टिफाई में काम करेंगे तो आप फॉर्म के ऊपर करेंगे। ठीक है ना, अगर आप ऑटोकैड में करते हैं तो ऑटोकैड में क्या होता है, आप एक्सेल शीट पर करेंगे। तो यहाँ पर ये बातों का ध्यान रखना आपने। तो कैसे करेंगे इंस्टॉल सर्टिफाई में, हमको ये 3 डॉट है ना, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एड ऑन्स पर जाएंगे। ठीक है, एड ऑन्स पर गए, तो यहाँ पर मैं क्या इंस्टॉल करना चाहती हूँ, सर्टिफाई। तो यहाँ पर सर्टिफाई की ऑप्शन, यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आप क्या कर सकते हो, जैसे आप जैसे होता नहीं अभी कोई फॉर्म सबमिट कर रहा है, टेस्ट दे रहा है, तो उस वहां पर ऊपर टाइम आता है, तो उसके लिए भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। प्लस वो क्या होता है, ओनली 20 पर यूज होता है, 20 टेस्ट पर यूज होता है, आपको खरीदना पड़ता है सॉफ्टवेयर, वो बोला। द सर्टिफाई पर इंस्टॉल करेंगे, देन कंटिन्यू। ईमेल को सिलेक्ट करें आप, देन अलो। तो सर्टिफाई हमारा इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर जब इंस्टॉल हो जाता है, यहाँ पर एड ऑन्स जो भी आपका आइकॉन होता है वो अटैच हो जाता है यहाँ पर। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टाइम ये शो नहीं करता, तो आप बेटर क्या है भी आप इसको रिफ्रेश कर ले।
ठीक है, एक बार हम इसका फॉर्म का भी जो भी है डाटा हम एक बार कर लेते हैं, इसको रिव्यू कर लेते हैं, इसकी फाइल जो भी है। जैसे मैंने ये क्विज फॉर्म बनाया ना, तो इसका नाम रख दिया क्विज। ठीक है जी, यहाँ पर रिस्पॉन्स, इसके रिस्पॉन्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, जब हम सर्टिफाइंग पर काम करेंगे तो वहां पर हो सकते हैं। आप चेक कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। तो हम सिंपल, मैं क्या करूंगी, इसको रिफ्रेश करना है, बिकॉज समटाइम फर्स्ट टाइम नहीं शो करता ये सर्टिफाइम। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बहुत आ गई है, शो सर्टिफाइम कंट्रोल्स रीसेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपने पहले कंट्रोल सेट किए है तो पहले ही आपने सेटिंग की है, दोबारा आप सर्टिफिकेट सेंड करना चाहते तो रीसेंट पर क्लिक करें, अगर नहीं तो शो सर्टिफाइम कंट्रोल्स। सो यहां पर इसका पॉपअप ओपन हो जाएगा। सो वेलकम, यू आर जस्ट 2 months अवे फ्रॉम, ये आपको एग्रीमेंट देगा, लाइसेंस जो भी उनकी सर्विसेज के जो कंडीशंस रूल होते हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। कंफर्म कर दे, अभी आपने पढ़ लिया है, वैसे कोई पढ़ता नहीं है। सो उसके बाद देखो आप यहाँ पर स्टेटस क्या है, आपने इस फॉर्म पर जो सर्टिफाइंग का जो भी सर्विस है आपने ऑन किया है कि ऑफ, सबसे पहले बाय डिफॉल्ट ऑफ ही आता है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, टर्न ऑन करना है इसको, सर्विस को। सो मैंने टर्न ऑन, प्लीज वेट कर, वो कह रहा है तो वेट करो आप। यस, ये टर्न ऑन हो गया। उसके बाद हम जैसे वहां पर रिस्पॉन्स पर एक्सेल शीट बनती तो हम सर्टिफाइड रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप सर्टिफिकेट आईडी, ठीक है, सर्टिफिकेट आईडी जो भी मैंने वहां पर दिए थी नाम, ईमेल, फुल नेम। यहाँ पर जो अदर आइडेंटिफायर उठा रहा है ना, ये कॉलेज नेम है, तो यहाँ पर जब टैग यूज करेंगे तो वहां पर अदर आइडेंटिफायर ही देना पड़ेगा। तो सर्टिफिकेट रेफरेंस नंबर के लिए मैं सर्टिफिकेट आईडी यूज करूंगी। तो सबसे पहले मुझे सर्टिफिकेट चाहिए ना इसको करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आप, अब इसमें ये ऑप्शन है, वहां पर क्या था ऑटोकैड में, आपको कंडीशन सेट करनी पड़ती है। तो वो कंडीशन के लिए वो थोड़ा सा और हार्डवर्क करना पड़ेगा, पर ये बाय डिफॉल्ट हमें ऑप्शन दे रहा है। अभी आप 80% वालों को भेजना चाहते हो, जब सभी को भेजना चाहते हो तो 0% पर क्लिक करें, अगर आप 60% को भेजना चाहते हो 60% पर क्लिक करें। तो यहाँ पर मैंने कर दिया। तो यहाँ पर देखो टेम्पलेट मीन्स सर्टिफिकेट का जो आप देखो, इन्होंने वैसे बहुत सारी ऑप्शन दे रखी है, भी आप यहाँ से भी कर सकते हो डिजाइन, बट मैं खुद का डिजाइन करना चाहती हूँ ना। ठीक है, तो यूज ए कस्टम टेम्पलेट। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं क्या करूंगी, मैं अपना सर्टिफिकेट जो खुद का डिजाइन करूँ उसको इंपोर्ट करूंगी। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं कहां पर जाऊंगी, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है इंपोर्ट करने के लिए कहां पर जाऊंगी? प्लीज रिप्लाई करें। मैम न्यू पे फाइल अपलोड में हो सकता है ना, अगर मैं तो पीपीटी में बनाना चाहती हूँ मैम, स्लाइड में। ओके मैम, स्लाइड्स में फिर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सो मैंने क्या किया, बिकॉज जो हमने वहां पर बनाया होता ना सर्टिफिकेट माइक्रोसॉफ्ट में, माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्जन होता है वहां पर कंपैटिबल नहीं है, यहाँ गूगल फॉर्म में वो कंपैटिबल नहीं है। गूगल क्या करता है, ओनली अपना जो हम उनका सॉफ्टवेयर उसमें उसके साथ जो कंपैटिबल होता है। ठीक है, सो गूगल फॉर्म में जाएंगे, यहाँ पर मैंने ब्लैंक फॉर्म लेना है। यहाँ पर oh sorry I am just new Google slide blank presentation। तो मुझे ये वाली फील्ड नहीं चाहिए, तो यहाँ पर ये साइन आएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ जी। तो ये 4 एरो आ रहे हैं ना, ठीक है, इस पर सिलेक्ट करेंगे तो डिलीट बटन पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना कीबोर्ड के, तो ये डिलीट हो जाएगा। इसको भी सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने कैसे इंपोर्ट करना है, फाइल में जाके ओपन दी फाइल। ठीक है, तो मेरे गूगल ड्राइव में भी आप कर सकते हो अपलोड, पर मैंने सीधा ही कर लेना, अपलोड में जाके सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस।
आपके कंप्यूटर पर जो भी फाइल होगी उसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने डेस्कटॉप पर रखा है सर्टिफिकेट, वो वाला, जैसे ये वाला सर्टिफिकेट ओपन। तो ये वाला सर्टिफिकेट हमारा ओपन हो चुका है। हाँ जी, तो सर्टिफाइड में क्या होता है, जो ऑटोकैड में हमने क्या यूज किया था, एंगुलर ब्रैकेट्स ना, एंगुलर ब्रैकेट यूज किए थे ना, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, सो कर्ली ब्रेसेस हम यूज करेंगे यहाँ पर, दिस वन, ये बात का ध्यान रखना आपने। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो सर्टिफाइड का रिकॉर्ड है, वहां पर जो ये नाम है ना, फुल नेम, यही सिलेक्ट करना है यहाँ पर भी। ठीक है, सो मैंने क्या किया, फुल नेम फ्रॉम आपका कॉलेज का नेम क्या है, तो मैंने वहां पर वो ऑटोमेटिकली क्या उठा रहा था, अदर आइडेंटिफायर। तो आपको ये वाला नाम ही देना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट ये यही उठाता है। सो यहाँ पर मैं टाइप करूंगी, कंट्रोल भी कर दिया मैंने, तो थोड़ा स्मॉल लेटर में आ गया ये, तो मैं इसको बड़ा करूंगी। आई एम सॉरी, मैं आपका थोड़ा ज्यादा टाइम ले रही हूँ। तो अदर आइडेंटिफायर, ओके, एक्चुअली किसी ने वो कर दिया था ना। मैम आपको प्रेजेंटेशन शो हो रही है? Yes, it is visible, but some participants are saying that it is not visible Okay, मैं at the दोबारा moment. रिज्यूम करती हूँ उसको मैम। Okay. 1 मिनट। ओके, इज इट विजिबल टू ऑल? Yes, ma'am. Okay. Yes. ओके ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ जी, तो हम क्या कर रहे थे, अगर आप सर्टिफाई में कर रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वो है कर्ली ब्रेसेस। आप कीबोर्ड पर देख सकते हो कर्ली ब्रेसेस होती है। आप इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। सो दिस वन, उसके बाद मैं क्या चाहती हूँ भी, इसके ऊपर रेफरेंस नंबर भी आ जाए ना, सर्टिफिकेट जो आईडी जनरेट होगी वो भी आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, यहाँ पर टैग यूज करूंगी, सॉरी टेक्स्ट एंटर करूंगी मैं। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। सो दिस वन, सो यहाँ पर जो हम टैग देंगे ना, तो वो भी हम क्या देंगे, कर्ली ब्रेसेस में देंगे, प्लस जो इसका नेम है वो ही देंगे। सर्टिफिकेट आईडी है ना इसका नाम, जो ऑटोमेटिकली वो आईडी जनरेट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाए, उसके बाद मैंने उसको पेस्ट कर दिया, देन उसको क्लोज कर दिया। थोड़ा मैं उसको बड़ा कर देती हूँ, बोल्ड कर दिया। तो हमारा ये सर्टिफिकेट जो है वो रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम कहाँ पर जाएंगे, फॉर्म के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर हम सर्टिफिकेट सिलेक्ट करेंगे। हमारे जो सर्टिफिकेट का नाम क्या था, हम यहाँ पर कंफ्यूज ना हो तो हम यहाँ पर नाम रखेंगे क्विज। मैंने उसका नाम रख दिया। देन उसके बाद क्या करूंगी, मैं सिलेक्ट करूंगी फाइल। तो क्विज पर मैं क्लिक कर दिया। ये मैंने खुद डिजाइन किया, मैं खुद का यूज कर रही हूँ। अब सिलेक्ट, सेव चेंजेस। तो मैंने देखो उन पर्सन को सर्टिफिकेट जाएगा
जहाँ देखो यहाँ पर टेम्पलेट क्या आ गया, क्विज आ गया जो मैंने अपलोड कर दिया है। तो उन पर्सन को सर्टिफिकेट जाएगा जिनके मार्क्स क्या है 60% है। तो आप देख भी सकते हो भी ये किस एग्जाम के साथ, किस फॉर्म के साथ ये लिंक्ड हुआ है, ठीक है ना। आई वांट टू चेक, मैंने राइट आंसर दिया था ना यहाँ पर, यस। सो मैं अब मेरा सारा काम हो गया, अब मैं इसका प्रीव्यू लूंगी भी मेरा सर्टिफिकेट जा रहा है। सो मैं यहाँ पर प्रीव्यू लेने लगी हूँ। सो यस, आप ईमेल टाइप करें। समटाइम टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। सो प्लीज अगर ना भी हुआ तो वो प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ती है। जैसे मैंने कॉलेज नेम टाइप कर दिया, फुल नेम, तो ये देखिए आप, जैसे मैंने सेक्शन में डिवाइड किया था ना, तो वो फर्स्ट सेक्शन में क्या आ गया, जनरल इंफॉर्मेशन आ गई है ना। उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगी, नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्विज बना दिया है। तो फर्स्ट वाले के क्या नंबर है, 2 पॉइंट्स है, और सेकंड वाले के क्या नंबर है, उसके भी 2 पॉइंट्स है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया डेनिस रिची, देन हाइपर, देन सबमिट। तो आप यहाँ पर अपने स्कोर भी देख सकते हैं, ठीक है जी। अब हम चेक करेंगे भी हमारा सर्टिफिकेट जनरेट हुआ कि नहीं। We have to wait. समटाइम ये टाइम ले लेता है, 2-3 मिनट भी। तो 1 मिनट में चेक करती हूँ। सर्टिफिकेट आईडी तो जनरेट हो गई है, वर्कशॉप ICT 77। आ गया, हाँ जी। तो ये देखो आप, हमें मेल आ गई है। सो समटाइम देखो ये वाले 2 टैग का भी काम नहीं किए, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो बाद में हम सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे फ्रॉम BM खालसा तो आ गया, तो सर्टिफिकेट आईडी नहीं आया, अभी फुल नेम नहीं आया, तो उसके लिए हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। तो वो आप बाद में भी कर सकते हैं। जैसे मैं अब यहाँ पर अब करने की कोशिश करती हूँ। जैसे सर्टिफिकेट आई, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो उसको जो टैग हमने यूज किए ना, जैसे मैंने ये स्मॉल साइज का हो गया ना, समटाइम्स वो टैग नहीं उठाता वो। तो मुझे एक थोड़ा साइज इसका इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे आई थिंक ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। हम क्या करते हैं, यहाँ से जो सेम है वो ही उठा लेते हैं। ओके मैम, मैम कह रहे हैं भी अब बस करो। वो क्या है, अगर वो टैग मैच नहीं होता तो आप थोड़ी सी प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। एक्सेल से आप कॉपी कर ले, जब पेस्ट कर ले यहाँ पर, वो टैग मैच हो जाएंगे। तो एट द एंड I would like to thank you, the principal sir, to give me a chance to share my knowledge with you all. If you have any query, just ask me freely. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, please, participants, if you have any question, you can ask. I think no one has a question. So I thank all the participants on behalf of IQAC and Department of Computer Science and Applications. My special thanks to Professor Harpreet Kaur
for enlightening us on the topics like generation of certificates in bulk and Google form designing. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I think we will find Thank you, ma'am. no problem now in certificate. Professor Kamal's Word and MS PowerPoint. Once again, I thank you all. Thank you.